So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है. एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basir Ghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA Assembly constituency. In both these cases, PC, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir. Visavadar is AC only. Visavadar is AC only, yeah, I know. So, friends, thank you very much. With this, I come to an end of this press conference. I would request, again, before ending, it's a festival which I am sure Delhi will celebrate in true spirits, and the campaign would be clutter-free, would not make the noises which are unwarranted. I request again that let Delhi vote with full participation. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for this very comprehensive briefing. Now, please raise your hands and we will come for the Q&A session. Let's start with the gentleman in the first row. Please, Micah, please move. First row. नमस्कार सर, यहाँ सर मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से सर. मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है, जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है. आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है. सर, एक छोटा सा सवाल और है. मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे, और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ. क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ. सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही. लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर. और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online.
And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. हाय सर, ऐश्वर्या मालेवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आजकल। सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से? तो क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया, जैसे आपने खुद कहा। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी की दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। 7 प्रकार के, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे। ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। आप तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्पर्श, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 तारीख को मतदान होना है फरवरी में। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी वो तारीख होगी जब दिल्ली में चुनाव के लिए जो मतदान है वो आज जो है होता हुआ नजर आएगा। यानी वोटिंग का डे 5 तारीख रखा गया है, और 8 तारीख की बात करें तो रिजल्ट डे यानी काउंटिंग डे जो है वो 8 तारीख रखा गया है, और बीच का दिन जो है वो रखा गया है वेडनेसडे जो है 5 तारीख को है। और खासतौर पर चुनाव आयोग ने इस पर जोर भी दिया कि बीच का दिन इसलिए भी रखा गया है ताकि कोई वीकेंड जो है बीच में ना पड़ता हुआ नजर आए, और पोलिंग है वो जो है परसेंटेज उसकी बढ़ती हुई जो है नजर आए। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि कब चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो होता हुआ जो है नजर आएगा। कुछ जो मुख्य डेट है वो हम बता ही रहे हैं कि 5 तारीख को जो मतदान है वो दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 8 तारीख को जो मतगणना है वो जो है होती हुई नजर आएगी। 17 तारीख वो डेट है, 17 जनवरी, जिसमें जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, यानी तब तक जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार देंगी, और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन वही जो है रखी गई है। यानी दिल्ली की जो नई सरकार है कौन बनती हुई नजर आएगी? आम आदमी पार्टी का तीसरी बार रिपीट करती हुई नजर आएगी, या फिर कांग्रेस 0 से कितना ऊपर पहुंचती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि एक लंबे समय से दिल्ली में सरकार में नहीं है तो क्या वो है इस बार दिल्ली में सरकार बनाती हुई नजर आएगी? ये तमाम चीजें जो है वो 8 फरवरी को जो है क्लियर होती हुई नजर आएगी। पिछले चुनाव की हम बात बता दें, यानी 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें 8 फरवरी को जो वोटिंग है वो जो है होती हुई जो है नजर आई थी, लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो 8 फरवरी को नतीजे जो है सामने आ जाएंगे। तो यानी अब अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 महीने का समय जो है बच गया, और तब जो है दिल्ली के सामने कौन जो है नई सरकार बनाता हुआ जो है नजर आएगा, ये जो है स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। 8 फरवरी को तमाम तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तमाम सवालों का जवाब भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो आरोप उनके ऊपर लगते हुए नजर आते हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकती है, ये एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है स्पष्ट किया गया। इसमें बताया गया कि किस तरीके से कुछ पार्टियां ये भी कहती हैं कि 5 बजे के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ जाता है, तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो पोलिंग पार्टीज होती है वो जो है ईवीएम लेकर जो है अलग अलग जो है जगह पर पहुंचती हैं, और उसके बाद जो है निश्चित तौर पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ना लाजमी जो है होता हुआ नजर आता है। एक बड़े आरोप का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया।
वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ती हुई नजर आई। इसको लेकर हमेशा से ही हम जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नई नई चीजें जो है करता हुआ नजर आता है। इस बार 85 जो साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग की जो सुविधा है वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो है दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल जो है दिल्ली में मतदान की घोषणा हो गई है। 5 तारीख को दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो मतदान होता नजर आएगा और 8 फरवरी की बात करते हैं तो चलिए बिल्कुल इस पर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ न्यूज रूम से समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी लाइव जुड़ गए हैं। वरुण जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है और अब चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2025 में दिल्ली किसकी होगी ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में 1955-56 में जब ब्रह्म प्रकाश और गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने, उसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद जो था वो 1993 तक नहीं था। 1993 में जब चुनाव हुए तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, फिर साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, यानी बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिल्ली को 3 मुख्यमंत्री दे दिए थे। फिर 1998 में शीला दीक्षित ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी जड़ें जमाई कि फिर 2013 तक वो लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, यानी 15 साल तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। फिर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, वहां से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वो मुख्य धारा में आए। पहली बार में उन्हें 28 सीटें मिली, कांग्रेस के 8 विधायकों का साथ मिला और उन्होंने 49 दिन सरकार चलाई। दूसरी बार उन्होंने जो सरकार बनाई 67 विधायकों के साथ, वो देश के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी जीत है सक्सेस रेट के हिसाब से, जहां 96% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीत ली थी। ये अब तक के देश के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी जीत थी। इससे पहले की जो 3 सबसे बड़ी जीत है वो सिक्किम में रही थी। चौथी सबसे बड़ी जीत तो थी वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हासिल हुई थी। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी क्योंकि कांग्रेस का जो वोट था वो लगातार कम होता जा रहा था और वो 4.5% से नीचे रह गई, इसलिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की, फिर भी सिर्फ 8 सीटें वो 2020 में जीत पाई और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 70 में से 62 सीटें जीत ली थी। 2025 का चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। कई लोग जो थे आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में पीछे संकट देखने को मिला, प्रमुख नेताओं को जेल जाना पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि उसके पास उसकी जो स्कीम है, जो उनका सबसे प्रमुख चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उसके नाम पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। लेकिन हम पीछे की सियासत को देखें 1993 से अब तक, तो ये समझ आता है कि बीजेपी के लिए दिल्ली बहुत दूर रही है। वहीं बार बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी पीछे छूट जाती है। 2015 के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंटेज 2020 में जाकर 4-4.5% बढ़ के 39% पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी के 53-54% से बहुत पीछे रह गई थी। नतीजा यही रहा कि एक तरफ 62 सीटें, एक तरफ 8 सीटें थी। अब सारा सवाल कांग्रेस पर आता है कि जिस कांग्रेस ने लगातार 3 बार रूल किया, 15 साल लगातार दिल्ली में सरकार रही, वो कांग्रेस 2015 में उनका एक भी विधायक नहीं था, 2020 में उनका एक भी विधायक नहीं था, दिल्ली में उनका कोई सांसद नहीं है, पार्षदों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह का मुकाबला दिल्ली में दे पाती है, ये बड़ा सवाल है। मुख्यतः माना यह जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन इन सबके बीच में दिलचस्प सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से उसने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है नई दिल्ली सीट से या दूसरी जगह पर, तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल।